نہیں تھا، آپ نے صرف دعا کی، ہجون میں آپ نے انہیں خود قبر میں اتر کر انہیں اتارا اور انہیں دفنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کے بعد اور ابو طالب کی وفات کے بعد خود کو بالکل تنہا سمجھنے لگے، اس لیے آپ نے سوچا کہ مکہ کے باہر جا کر دعوت دین کی ابتدا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں دعوت اسلام دینے کے لیے آپ نے وہاں کے سردار، جو 3 بھائی سردار تھے، ان سے سب سے پہلے رابطہ کیا۔ یہ عمیر خاندان تھا، آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان تینوں بھائیوں نے بہت گستاخانہ جواب دیے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تم کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو تم تو پھر کعبے کے پردے چاک کر رہے ہو۔ دوسرے نے کہا کہ کیا تمہارے سوا خدا کو کوئی اور پیغمبر نہیں ملا تھا؟ تیسرے نے کہا میں بہرحال آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ سچے ہیں تو مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے گستاخی محسوس ہوتی ہے، یہ خلاف ادب ہوگا کہ میں آپ سے بات چیت کروں، اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ اس لائق ہی نہیں کہ آپ سے گفتگو کی جائے۔ ان تینوں سے اس قدر عبرت انگیز جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی اور نا امید ہوئے۔ انہوں نے وہاں کے بازاریوں کو ابھار دیا کہ وہ آپ کی ہنسی اڑائیں، شہر کے اوباش ہر طرف پھیلا دیے اور آپ کے پیچھے لگا دیے۔ یہ مجمع 2 طرح سے صفیں بنا کر کھڑا ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچ میں سے گزرنے پر مجبور کیے گئے اور دونوں طرف سے پتھر ان کے پاؤں پر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے اور آپ کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی۔ کبھی آپ بیٹھ جاتے تو یہ آپ کو کھڑا کرتے اور کہتے ذرا تبلیغ کر کے بتاؤ نا، وہ پھر بتاؤ نا وہ تم کیا بتا رہے تھے، وہ تم دوبارہ ذرا تعارف تو کرواؤ کہ تم کون ہو، وہ تمہارا دین کیا ہے۔ ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیتے تھے اور تالیاں بھی بجاتے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ وہ شخص شریف النفس تھا۔ اس نے جب آپ کی حالت دیکھی اور زید بن حارثہ کو روتے اور آپ کے پاؤں دھوتے دیکھا تو اس نے انگور کا ایک خوشہ توڑ کر تشتری میں رکھ کر بھیجا اور آپ کو تناول فرمانے کے لیے آفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر جب آپ کو سکون ہوا تو آپ نے عتبہ بن ربیعہ سے کہلوا بھیجا کہ کیا مجھے اپنی حمایت میں لے سکتے ہو؟ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا میں یہاں سے زندہ واپس جا سکتا ہوں؟ کیا تم یہ یقین دہانی میرے لیے کر سکتے ہو کہ مجھے یہاں سے بھی زندہ واپس اپنے شہر سے بھی نکلوا دو اور مکہ میں بھی مجھے زندہ واپس پہنچوا دو؟ عرب کا شعار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ان سے حمایت مانگتا تو وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کی حمایت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو عتبہ کا بیٹا مطعم اونٹ پر سوار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلواروں کے سائے میں مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ شاب ابی طالب کی اذیتیں، حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف کی تبلیغ، یہ سارے غموں کے پہاڑ بن کر ٹوٹے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، وہ کام آئی۔ اللہ تعالیٰ نے 27 رجب 10 نبوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے سارے غموں کے بعد آسانی اور اتنی ساری پریشانیوں کے بعد راحت اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ بھرپور محبت کا اظہار تھا کہ آپ کی سیرت پاک پر یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ معراج کو اسراء بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم اس کی تمام تفصیل بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آمنہ کلال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کلال صاحب جمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا ٹاپک معراج نبوی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब पैगंबरी पे फायज़ हुए तकरीबन 12 साल गुज़र चुके थे। 50-52 बरस की उम्र थी। हरम काबा में सो रहे थे। ये मोहब्बत के इजहार की एक्सट्रीम थी, परफेक्शन थी। अल्लाह ताला ने ये कमाल को अपनी मोहब्बत पहुंचाई और अल्लाह ताला ने इसका इजहार भी बहुत कमाल अंदाज से किया। अल्लाह ताला की एक सुन्नत है कि अगर कभी किसी को आज़माता है, तकलीफ़ में डालता है, फिर उसको उसमें से बाहर निकालता है और वो बंदा सब्र और तहम्मुल से अगर उसे बर्दाश्त करता है और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहता है, तो वो कोई भी बंदा हो, अल्लाह ताला उसके रुतबे बुलंद करता है। और अगर वो महबूब खुदा हो और वो एक नबी हो और वो आखिरी नबी हो, तो फिर उसे अल्लाह ताला ने महराज करा दी। महराज उस इंतहा को कहते हैं, उस ऊंचाई को कहते हैं, उस सिदरतुल मुंतहा पहुँचने को कहते हैं, जहाँ अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। और ये ताज, ऐसा चमकता ताज, सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीब में ही आया। आप हरम काबा में सो रहे थे कि यकायक जिब्रील आए और आपको आकर जगाया, उठाकर जमजम के पास ले गए। वहाँ आपका सीना चाक कर दिया। जमजम के पानी से आपकी छाती को, आपके दिल को धोया, फिर उसे इल्म, बुर्दबारी और दानाई और हिकमत से, ईमान और यकीन से भर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जानवर पेश किया गया जिस पर आपको सवार होकर आसमान की तरफ जाना था। इसका रंग सफ़ेद था और कद गधे से ज़रा सा बड़ा और खच्चर से ज़रा सा कम था। बर्क़ की रफ्तार से, तेज़ बर्क़ की जैसी रफ्तार थी, चलता था। उसी मुनासबत से उसका नाम बराक़ था। पहले अंबिया भी इसी नौइयत की सवारी पर सवार हुआ करते थे, इसलिए अंबिया के लिए ऐसी सवारी कोई बड़ी बात या नई बात नहीं थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे तो वह जानवर चमका, तो जिब्रील अमीन ने उसको थपकी देकर कहा, देखो क्या करते हो, आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी शख्सियत ने तुम पर सवारी नहीं की। इनसे ज़्यादा अजीम कोई शख्सियत तुम पर सवार नहीं हुई है और ना ही हो सकती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ उस सवारी पर चले। आपका सफ़र ख़त्म हुआ। रास्ते में कई क़ुव्वतों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जिब्रील अमीन ने आपको किसी से भी बात करने से मना कर दिया। बैतुल मक़दस में जाकर आपका क़याम हुआ। वहाँ आप बुराक से उतर गए और उसी मकाम पर उस सवारी को बांध दिया गया। जहाँ पहले अंबिया की सवारियाँ बंधा करती थीं, वहीं पर आपकी सवारी को बांध दिया गया। आपके पहुँचते ही नमाज के लिए सफ़ें बंधना शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर जिब्रील अमीन ने इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया। फिर आपको 3 प्याले पेश किए गए। जब आपने इमामत करा ली, 2 रकत नमाज पढ़वा ली, तो आपकी ज़ियाफ़त 3 चीज़ों से की गई। ये 3 मुख्तलिफ़ प्याले थे, जिसमें एक में पानी, एक में दूध और एक में शराब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का इंतखाब फरमाया, तो जिब्रील अमीन ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह, आप फ़ितरत के करीब तर हैं। आपने वो चीज़ चुनी है जो अल्लाह ताला आपके लिए पसंद करता है। आप फ़ितरत की राह पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ दूध नोश फरमाया। उसके बाद आसमान का सफ़र शुरू हुआ। पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। फ़रिश्ते ने पूछा कि कौन है? जिब्रील अमीन ने अपना नाम बताया। फ़रिश्ते ने कहा कि आपके साथ भी कोई है? उन्होंने कहा जी हाँ। वो कौन है? फरमाया मोहम्मद। कहा क्या उन्हें बुलवाया गया है? तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया जी हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदऊ किए गए हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया है। फ़रिश्तों ने बहुत पुरतपाक खैर मकदम किया। फ़रिश्तों से और बहुत अरवाह, बड़ी अजीम अरवाह से, शख्सियात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ करवाया गया। सबसे ज़्यादा मुतनासिब जिस्म, खूबसूरत और जिनमें कोई ऐब और नक्स नज़र ना आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली मुलाकात उनसे कराई गई। और जिब्रील अमीन ने बताया कि ये आदम हैं, ये आपके मूरे से आला हैं। वहाँ बहुत सारे लोग थे। दाईं जानिब हज़रत आदम देखते थे तो हंसते थे, खुश होते थे, बाईं जानिब देखते थे तो रोने लगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल किया तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया
کہ दाएं जानिब ये अपनी नस्ल के नेक लोगों को देखते हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं तो ये खुश होते हैं, और बाएं जानिब जहन्नुमी नस्ल को देखते हैं जो कि इनकी औलाद है तो ये दुखी होकर रोने लगते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहिदे का मौका दिया गया। आपको एक एक चीज़ दिखाई, बताई और समझाई गई। आपको दिखाया गया कि एक जगह लोग खेती काट रहे हैं और वो जितना काटते जाते हैं वो उतनी बढ़ती जाती है। पूछा गया ये कौन है? तो ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले लोग हैं। फिर देखा कि कुछ लोग हैं जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा ये कौन है? कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी सुस्ती उन्हें नमाज की तरफ जाने से रोकती थी। कुछ और लोग दिखाए गए जिनके कपड़ों में आगे पीछे पैबंद लगे हुए थे। पूछा ये कौन है? और ये लोग जानवरों की तरह घास चर रहे थे। कहा कि ये वो लोग हैं जो अपने माल में से ज़कात और खैरात नहीं करते थे। पूछा ये कौन लोग हैं जो लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जब नहीं उठता तो आपस में कुछ लकड़ियां कोई बढ़ा लेता है। पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो हैं जिनके सर पर अमानतों का बोझ है और ये जिम्मेदारी और अमानतें इस कदर हैं कि वो पहले उठा नहीं पाते हैं तो वो और लकड़ियों का गट्ठा जो है वो और अमानतें अपने ऊपर डाल लेते हैं जो अभी पहली अदा होना बाकी हैं, बस जबकि वो अदा हो ही नहीं पा रही हैं तो दूसरी अपने ऊपर खुद लादे चले जाते हैं। फिर देखा कि कुछ लोगों की ज़ुबानें कैंचियों से काटी जा रही हैं। पूछा ये कौन है? कहा गया कि ये गैर जिम्मेदार मुकर्रिर हैं जो बेतकल्लुफ़ ज़ुबान चलाते हैं, तकरीरें करते हैं और फितना बर्पा कर देते हैं। एक और जगह आपको दिखाई गई कि एक पत्थर में ज़रा सा शिगाफ हुआ और उसमें से एक बड़ा मोटा सा बैल नज़र आया, बाहर निकल आया। फिर वो बैल इसी शगाफ में वापस जाने की कोशिश करता रहा मगर न जा सका। पूछा ये क्या मामला है? कहा गया कि इस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज बात कर जाता है, फिर नादिम होकर उसकी तलाफी करना चाहता है लेकिन करने नहीं पाता क्योंकि बात मुंह से निकल चुकी। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा ये दूसरों पर जुबान ताना देते हैं, जुबान दराज करते हैं। उन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो उनसे अपने मुंह नोच रहे थे और अपने सीने नोच रहे थे। पूछा ये कौन लोग हैं? कहा कि ये वो लोग हैं जो लोगों की पीठ पीछे बुराई किया करते थे और इनकी इज्जतों पर हमले किया करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊँटों के मुशाबिह थे और वो आग खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये यतीमों का माल खाने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बढ़े हुए हैं और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले उनको रौंदते हुए निकल जाते हैं मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा ये कौन लोग हैं? कहा गया ये सूदखोर हैं। फिर कुछ और लोग नज़र आए जिनके एक जानिब नफीस चिकना सा गोश्त रखा था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त रखा था जिसे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियां और हलाल शौहरों के होते हुए हराम से अपनी ख्वाहिश पूरी की। फिर देखा कुछ औरतें अपनी छातियों के बल लटक रही हैं। पूछा ये कौन औरतें हैं? कहा गया ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शौहरों के सर ऐसे बच्चे मंड दिए हैं जो उनकी सुल्ब से नहीं थे। इन्हीं मुशाहिदात के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फ़रिश्ते से भी हुई जो बहुत तुर्श रूई से मिला। यानी सब फरिश्ते आपका बहुत हंसते मुस्कराते खैर मकदम कर रहे थे और आपकी आओ भगत कर रहे थे, मगर इस फरिश्ते की खंदा पेशानी की जगह तुर्श रूई देखकर आपको अच्छा नहीं लगा। आपने जिब्रील अमीन से कहा कि इनको क्या हुआ, यानी मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, सब इतनी मोहब्बत से मिल रहे हैं और ये इतने गुस्से से। तो हज़रत जिब्रील ने जवाब दिया, इनका हंसने मुस्कराने से क्या काम, ये दोज़ख के दारोगा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे दोज़ख दिखाओगे। उन्होंने एकदम पर्दा हटा के दोज़ख की होलनाकियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दी। इस मरहला से गुज़र कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दूसरे आसमान पर पहुँचे। यहाँ के अकाबिर में 2 नौजवान सबसे ज़्यादा मुमताज़ थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि एक हज़रत याहिया और दूसरे हज़रत ईसा हैं। तीसरे आसमान पर आपका तारुफ एक ऐसे बुज़ुर्ग से कराया गया जिनका हुस्न आम इंसानों की निस्बत ऐसे था जैसे तारों के मुकाबले में 14वीं का चांद होता है। मालूम हुआ कि ये यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर हज़रत हारून से मुलाकात हुई। 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा आपसे मिले। हज़रत मूसा ने तो चूँकि आपसे बातचीत करनी थी, इसलिए हम आपको वक्फे के बाद बताते हैं। हमारे साथ रुकिएगा। नाज़रीन कराम, बहुत खुशी हुई आप हमारे साथ हैं। वहीं से इब्तिदा करते हैं। 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अज़ीमुश्शान महल देखा जिसे बैतुल मामूर कहते हैं, जहाँ बेशुमार फरिश्ते आते और जाते थे। उसके पास आपकी मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग से हुई जो ख़ुद आपसे बहुत मुशाबह थे, जिनकी सूरत, जिनका कद-ओ-काठ, जिनकी जिसामत, जिनके नए नक्श आपसे मिलते थे। ये हज़रत इब्राहीम थे। फिर मज़ीद इर्तिका शुरू हुआ, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँच गए, जो पेशगाह रब्बुल इज़्ज़त और आलम खल्क़ के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता है। उस पर तमाम खलाइक का इल्म ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब गैब है, जिसका इल्म न किसी नबी को है और न किसी और मुक़र्रब फरिश्ते को। सिदरतुल मुंतहा के बाद जो कुछ भी होता है वो सिर्फ़ गैब का इल्म कहलाता है, सिवाय उसके जिसे अल्लाह ताला ख़ुद उसमें से इल्म दे दे, वो उसकी मर्ज़ी है। नीचे से जो कुछ जाता है वो यहाँ से ले लिया जाता है, और ऊपर से जो कुछ आता है उसे यहाँ पर वसूल कर लिया जाता है। ये सिदरतुल मुंतहा एक हद है, एक लाइन है। इसी मकाम के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा कराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर देखा, आपने वहाँ पर जन्नतों की ज़ियारत की। आपने देखा कि अल्लाह ने अपने साले बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो किसी आँख ने नहीं देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी जहन ने कभी उसका तसव्वुर भी किया। सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जिब्रील ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए। अब आप आगे बढ़े, एक बुलंद हमवार सतह पर पहुँचे तो बारगाह जलाल सामने थी। हम कलामी का शर्फ बख्शा गया। जो बातें इरशाद हुई वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकामात भी बने, तोहफ़ा भी मिला। आपने इब्तिदा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात से की और अल्लाह ताला ने आपको 50 नमाज़ें रोज़ की फ़र्ज़ के तौर से तोहफ़े में दी। सूरा बकरा के आखिरी 2 रुकू तालीम फरमाए, आखिरी 2 आयात तालीम फरमाई। शिर्क के अलावा दूसरे तमाम गुनाहों की बख्शीश का ऐलान बतौर रहमत के और तोहफ़े के अता किया गया और इरशाद फरमाया, ये मैं आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको तोहफ़े में क्या क्या दिया। सबसे पहले 50 नमाज़ें बतौर फ़र्ज़ के, दूसरे सूरा बकरा की आखिरी 2 आयात बतौर तोहफ़े के, तीसरे शिर्क के अलावा दूसरे तमाम गुनाहों की बख्शीश का ऐलान बतौर इनाम के, रहमत के, और फिर एक इरशाद, एक वादा और कि जो शख्स नेकी का इरादा करेगा उसके हक़ में एक नेकी लिख ली जाएगी और जो उस पर अमल करेगा तो उसको 10 नेकियां मिलेंगी, मगर जो बुराई का इरादा करेगा उसकी बुराई नहीं लिखी जाएगी जब तक कि वो बुराई कर ना ले। ये एक ख़ास इनाम, रहमत और तोहफ़ा है जो मेराज पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी उम्मत के लिए दिया गया। देखिए, जब हम बुराई का इरादा करें तो बुराई न लिखी जाए, लेकिन जब नेकी का इरादा भी करें तो हमें एक नेकी का सवाब मिल जाए। ये उसकी रहमत और अल्लाह का तोहफ़ा ही हो सकता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे इरशादात खुशी खुशी लेकर वापस आए तो हज़रत मूसा से मुलाकात हो गई। अब हज़रत मूसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम रूदात सुनी और जब ये सुना कि आपको ये 4 रहमतें, तहाइफ, बख्शीश और उनमें से नंबर 1 पे 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई मिली हैं, तो आप बाकी बातों पर तो बहुत खुश हुए, लेकिन नमाज़ों पर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह वापस जाइए
اور یہ 50 کو کم کرا دیجیے، آپ کی امت ستائے گی۔ 50 نمازیں ان پر بہت گراں گزریں گی، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ گئے اور 50 نمازوں سے کم کرنے کا اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دیں۔ دوبارہ آئے، حضرت موسیٰ نے پھر کم کروانے کے لیے کہا، پھر گئے، 10 اور کم ہو گئیں، پھر 10 اور کم ہو گئیں، پھر 5 کم ہوئیں، اور پھر 5 کی فرضیت طے ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا کہ جس شخص نے 5 نمازیں اچھے طریقے سے، اچھی طرح وضو کر کے وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی، انہیں 50 نمازوں ہی کا اجر ملے گا۔ یعنی 5 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن چونکہ پہلے 50 فرض ہوئی تھیں تو جتنا اجر 50 کا ہے اتنا ان 5 کا ملے گا۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سے پہلے آپ نے اپنی چچا زاد بہن امہانی کو یہ سارا قصہ سنایا۔ باہر نکلنے کا ارادہ کیا کہ سب لوگوں کو بھی سنائے، تو امہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میرے بھائی، اگر تم نے باہر جا کر یہ بات کی، کفار پہلے ہی آپ کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، انہیں اور موقع مل جائے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا کی ہے، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ اپنے دل میں ہی اس بات کو رکھیے، مجھے سنا دیا بس کافی ہے، اور دبا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں امہانی، میں تو یہ سب کو بتاؤں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا، آج رات میں بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ کہنے لگا، رکو رکو، یہ تو بہت مزیدار بات ہے، میں اوروں کو اکٹھا کر کے لاتا ہوں، سب سنتے ہیں۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا مذاق اور تضحیک کا اسے موقع مل گیا ہے۔ وہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے لے آیا اور کہنے لگا کہ بھائی اب سناؤ، کہاں گئے تھے بیت المقدس، کتنی دیر لگائی، کیا کیا، کتنا لمبا سفر تھا، ہزاروں میل کے سفر کو کتنے دنوں میں طے کیا، کتنے مہینوں میں طے کیا، راستے میں کیا کیا دیکھا، سارا بتاؤ۔ آنن فانن یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ حضرت جبریل کا آنا، یہ سارا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اب تضحیک اور تمسخر کی صورت میں بھی، اور کچھ اصحاب کا ایمان بھی متزلزل ہونے لگا کہ یہ کیا باتیں شروع ہو گئیں۔ حضرت صدیق، حضرت ابو بکر صدیق ایک جگہ بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بات سنی اور کہنے لگے، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتائی ہے؟ کیا تم نے ان کی زبان سے خود یہ پورا واقعہ سنا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا ہے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، پھر یہ سچ ہی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، یہ واقعہ یقیناً سچ ہوگا۔ اس کے بعد وہ آئے اور حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود پایا اور پورا واقعہ آپ کے منہ سے سنا، اور کہا کہ میں نے آپ کے منہ سے سننے سے پہلے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ